Point 19 International Process of Claim Bainul Aqwami Dawa. Point 1 Introduction. The international process of claim refers to the structured legal and administrative procedure through which an individual, business, organization, or government seeks compensation, enforcement of rights, recovery of assets, settlement of disputes, or other legal remedies across international borders. International claims may arise from commercial transactions, contractual disputes, intellectual property infringements, investment disputes, shipping matters, insurance claims, employment issues, consumer protection matters, cyber-related incidents, inheritance disputes, or violations of international agreements. Since international claims involve multiple legal systems, jurisdictions, treaties, and regulatory authorities, the process requires careful planning, thorough documentation, legal compliance, and professional representation. Our organization assists clients throughout every stage of the international claims process while ensuring compliance with applicable domestic and international laws. तारुफ नंबर 1। इंटरनेशनल प्रोसेस ऑफ क्लेम बैन अवी दावे से मुराद वो मुनज़्ज़म कानूनी और इंतज़ामी तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए कोई फ़र्द, कंपनी, इदारा या हुकूमत एक से ज़ायद ममालिक से मुतल्लिक किसी तनाज़ा मुआहदे की खिलाफ वर्जी, माली नुकसान, सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़, दानिशवराना इमलाक की खिलाफ वर्जी, बीमा, तजारती लेन देन, वरासत, बहरी मामलात या दीगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बैन अवी कानूनी मामलात में अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, मुआवजे के हसूल, असासों की बाजियाबी या कानूनी नफाज के लिए दावा दायर करती है। चूँकि बैनुल-अक़वामी दावे मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन, अदालतों, मुआहदों, ज़वाबित और कानूनी निज़ामों से मुतल्लिक होते हैं, इसलिए इनकी तैयारी और पैरवी नहायत एहतियात, मुकम्मल दस्तावेज़ात, कानूनी महारत और पेशा वराना नुमाइंदगी की मुतकाज़ी होती है। हमारा इदारा दावे के इब्तदाई जायजे से लेकर हतमी फैसले और फैसले पर अमल दरामद तक हर मरहले में अपने मुवक्किलीन की मुकम्मल रहनुमाई, मुकम्मल कानूनी मुआवनत फराहम करता है। Purpose of the international claim process. Point 2. The objectives of an international claim includes protecting the legal rights of claimants, recovering financial losses, seeking contractual agreements, seeking contractual enforcements, obtaining compensation for damages, recovering unpaid debts, enforcing intellectual property rights, resolving international commercial disputes, protecting foreign investments, recovering asset located abroad, assets located abroad, achieving fair and lawful dispute resolution। बैन अवी दावे का मकसद नंबर 2। बैन अवी दावा दायर करने के बुनियादी मकासद दर्ज झैल हैं: कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़, माली नुकसानात का अज़ाला हासिल करना, मुआहदों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, नुकसान का मुनासिब मुआवजा हासिल करना, वाजिबुल अदा रकूम की वसूली, दानिशवराना इमलाक के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, बैनुल-अक़वामी तजारती तनाज़ात का हल, गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़, बैन बैरून मुल्क मौजूद असासों की बाजियाबी, मुनसिफाना और कानूनी बुनियादों पर तनाज़ात का तस्वीर। Point 3 Types of international claims. International claims may include but are not limited to 3, 3.1 commercial claims. Claims arising from international trade, import-export agreements, supply disputes, distribution contracts, and international sales agreements. 3.2 Contractual claims. Claims involving breaches of international contracts, service agreements, licensing arrangements, partnership agreements, and joint ventures. 3.3 Investment claims. Claims involving foreign direct investment, bilateral investment treaties, investment protection agreements, or governmental action affecting investments. 3.4 Intellectual property claims. Claims related to trademark infringement, copyright infringement, patent infringement, trade secret violations, domain name disputes, counterfeit products. 3.5 Shipping and maritime claims, including cargo damage, freight disputes, vessel collisions, marine insurance claims, shipping delays, charter party disputes. 3.6 Insurance claims, international insurance matters involving property damage, marine insurance, business interruption, professional liability, product liability, travel insurance. 3.7 Employment claims,
cross-border employment disputes involving wrongful termination, employment contracts, executive compensation, immigration-related employment issues. 3.8 consumer claims, claims relating to international online purchases, defective products, service failures, fraudulent transactions, or misleading advertising. 3.9 state and probate claims, cross-border inheritance matters involving international beneficiaries, foreign assets, wills, trusts and probate administration. बैन अवी दावों की तकसीम नंबर 3। बैन अवी दावे मुख्तलिफ नौयत के हो सकते हैं जिनमें शामिल है तजारती दावे 3.1 और डिस्ट्रीब्यूशन बैन अवी खरीदो फरोख्त दरामद व बरामद सप्लाई के मुआहदे सप्लाई के मुआहदों तकसीम कारी तजारती मुआहदों से मुतल्लिक तनाज़ात मुआहदाती दावे 3.2 बैन अवी मुआहदों खिदमात के मुआहदों लाइसेंसिंग शराकत दारी ज्वाइंट वेंचर और दीगर कानूनी मुआहदों की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक दावे सरमायाकारी से मुतल्लिक दावे 3.3 गैर मुल्की सरमायाकारी सरमायाकारों सरमायाकारी के मुआहदों दो तरफा सरमायाकारी मुआहदों और हुकूमती इकदाम से मुतल्लिक तनाज़ात दानिशवराना इमला के दावे 3.4 जिनमें शामिल हैं ट्रेडमार्क की खिलाफ वर्जी कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पेटेंट की खिलाफ वर्जी ट्रेड सीक्रेट तजारती राज की खिलाफ वर्जी डोमेन नेम तनाज़ात जाली मसनूआत के दावे बहरी और शिपिंग दावे 3.5 मसलन सामान को नुकसान पहुंचना माल बर्दारी के तनाज़ात जहाज़ों के तसादुम मैरीटाइम इंश्योरेंस के दावे शिपिंग में ताख़ीर चार्टर पार्टी तनाज़ात बीमा के दावे 3.6 बैन अवी बीमा से मुतल्लिक मामलात जैसे जायदाद का नुकसान मैरीटाइम इंश्योरेंस कारोबारी तातुल पेशेवराना जिम्मेदारी मसनूआत की जिम्मेदारी सफरी बीमा मुलाजमत से मुतल्लिक दावे 3.7 मसलन गैर कानूनी बरतरफी मुलाजमत के मुआहदे एग्जेक्टिव मुआवजा इमिग्रेशन से मुतल्लिक मुलाजमत के तनाज़ात सार्फिन के दावे 3.8 बैन अवी ऑनलाइन खरीदारी नाकिस मसनूआत खिदमात में कोताही फ्रॉड या गुमराह कुन इश्तहारात से मुतल्लिक दावे विरासत और जायदाद के दावे 3.9 बैन अवी विरासती मामलात बैरून मुल्क असासे वसीयत ट्रस्ट और प्रोबेट से मुतल्लिक दावे। Point 4 preliminary claim assessment. For initiating an international claim, we conduct a comprehensive assessment including legal analysis, jurisdiction review, applicable law determination, treaty applicability, contract review, evidence evaluation, financial assessment, limitation period analysis, risk assessment, probability of recovery. इब्तदाई कानूनी जायजा नंबर 4 दावा दायर करने से कबल दर्ज झैल अमूर का तफसीली जायजा लिया जाता है कानूनी तजिया दायरा इख्तियार जुरिस्डिक्शन का तयन काबिल इतलाक काबिल इतलाक कानून की शनाख्त बैनुल अक़वामी मुआहदों का जायजा मुआहदों की जाँच शवाहिद का तजिया माली नुकसान का तखमीना कानूनी मुद्दत लिमिटेशन पीरियड का जायजा खतरात का तजिया कामयाबी के इम्कानात का जायजा। Point 5 initial consultation. Our professionals discuss facts of the dispute, available evidence, desired outcome, financial losses, available legal remedies, estimated costs, expected timeline, jurisdictional considerations. इब्तदाई मुशावरत नंबर 5 इब्तदाई मुलाकात के दौरान दर्ज झैल अमूर पर गुफ्तगू की जाती है तनाज़े की मुकम्मल हकीकत दस्तयाब शवाहिद मतलूबा कानूनी नताइज माली नुकसानात दस्तयाब कानूनी रास्ते मुमकिन अखराजात मुतवक्का मुद्दत मुतल्लिका दायरा इख्तियार। Point 6 collection of documents. Successful international claims depends upon comprehensive documentation. Typical documents include contracts, purchase orders, invoices, bills of lading, shipping documents, customs documentation, bank records, payment receipts, emails, correspondence, meeting records, digital communications, intellectual property registrations, licenses, government permits, insurance policies, expert reports, witness statements, photographs, videos, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दस्तावेजात की तैयारी। नंबर 6 कामयाब दावा के लिए मुकम्मल और दुरुस्त दस्तावेजात इंतहाई अहम होती हैं। मुमकिन दस्तावेजात में शामिल है मुआहदे खरीदारी के आर्डर इनवॉइसेस शिपिंग दस्तावेजात कस्टमर रिकॉर्ड
बैंक रिकॉर्ड, अदायगी की रसीदें, ईमेल्स, खतो किताबत, इजलासों के रिकॉर्ड, डिजिटल पैगामात, दानिशवराना इमला की रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, हुकूमती इजाजतनामे, इंश्योरेंस पॉलिसियाँ, माहिरीन की रिपोर्ट्स, गवाहों के बयानात, तस्वीर, वीडियोस, मालियाती गोशवारे। पॉइंट सेवन, वेरिफिकेशन ऑफ एविडेंस। ऑल एविडेंस इज रिव्यूड फॉर ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी, लीगल एडमिसिबिलिटी, ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, अपोस्टल और लीगलाइजेशन चेन ऑफ कस्टडी, डिजिटल इंटेग्रिटी। शवाहिद की तस्दीक। नंबर 7, तमाम शवाहिद की जांच दर्ज झैल बुनियादों पर की जाती है। असलियत, दुरुस्तगी, कानूनी हैसियत, तर्जुमे की जरूरत, तस्दीक या सर्टिफिकेशन, अपोस्टल या कानूनी तौसीक, शवाहिद की हिफाजत, डिजिटल शवाहिद की सालमियत। Point 8, jurisdiction analysis. International claims require determining the appropriate forum. Factors considered include place of contact, place of performance, defendant's location, applicable law, arbitration clauses, forum selection clauses, international treaties, national legislation, asset location, दायरा इख्तियार का तयन। नंबर 8, बैनुल-अक़वामी दावे में मुनासिब फोरम या अदालत का इंतखाब दर्ज झैल अवामिल की बुनियाद पर किया जाता है। मुआहदा कहाँ हुआ, मुआहदे पर अमल कहाँ होना था, मुद्दाले की रिहाइश या कारोबार, कानूनी इतलात कानून, सालिस की शिक, अदालत के इंतखाब की शिक, बैनुल-अक़वामी मुआहदे, कौमी कवानीन, असासों का मुकाम। पॉइंट 9, एप्लीकेबल लॉ। लीगल प्रोफेशनल्स डिटरमाइन विच लॉज गवर्न द डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक लॉ, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कमर्शियल लॉ, मैरिटाइम लॉ, कंज्यूमर लॉ, इन्वेस्टमेंट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ प्रिंसिपल्स। काबिल तलाक कानून। नंबर 9, दावे में दर्ज झैल कवानीन का जायजा लिया जा सकता है। मुल्की कवानीन, बैनुल-अक़वामी कवानीन, तजारती कवानीन, बहरी कवानीन, सार्फिन के कवानीन, सरमायाकारी के कवानीन, लेबर कवानीन, दानिशवराना इमलाक के कवानीन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, तनाज़े कवानीन। Number 10, treaty analysis where applicable. International treaties may govern the dispute. Examples include international trade treaties, investment treaties, intellectual property conventions, maritime conventions, international sales conventions, tax treaties, bilateral cooperation agreements, बैनुल-अक़वामी मुआहदों का जायजा। नंबर 10, जरूरत के मुताबिक दर्ज झैल मुआहदे लागू हो सकते हैं। बैनुल-अक़वामी तजारती मुआहदे, सरमायाकारी के मुआहदे, दानिशवराना इमलाक के कन्वेंशन, बहरी कन्वेंशन, बैनुल-अक़वामी फ़रोख्त के मुआहदे, टैक्स मुआहदे, दो तरफ़ा ताउन के मुआहदे। पॉइंट 11, प्रेपरेशन ऑफ लीगल क्लेम। The legal claim is carefully prepared and may include statement of facts, legal basis, evidence summary, applicable law, calculation of damages, supporting documents, requested relief, interest calculations, costs claim, कानूनी दावे की तैयारी। नंबर 11, दावे में आमतौर पर शामिल होता है हकाइक का बयान, कानूनी बुनियाद, शवाहिद का खुलासा, काबिल इतलाक कानून, नुकसान का हिसाब, माविन दस्तावेजात, मतलूबा कानूनी रिलीफ, सूद का हिसाब, अदालती अखराजात का मुतालबा। Point 12, notice of claim. In many jurisdictions, a formal notice is issued before commencing legal proceedings. The notice may contain details of the dispute, legal grounds, supporting evidence, amount claims, the settlement proposal, deadline for response, future legal actions if unresolved. कानूनी नोटिस। नंबर 12, बहुत से मामलात में मुकदमा दायर करने से पहले कानूनी नोटिस भेजा जाता है जिसमें शामिल होता है तनाज़े की तफसील, कानूनी बुनियाद, दस्तयाब शवाहिद, दावे की रकम, तस्फिये की तजवीज़, जवाब देने की आखिरी तारीख, आइंदा कानूनी कार्रवाई की इतला। Number 13, negotiation process. Many international disputes are resolved through negotiation. Negotiation may include direct communication, lawyer-to-lawyer discussions, business negotiations, settlement conferences, cross-border negotiations, commercial discussions. मुज़ाकरात। नंबर 13, बहुत से बैनुल-अक़वामी तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाते हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं बराह रास्त मुज़ाकरात, वकला के दरमियान मुज़ाकरात, कारोबारी मुलाकातें, तस्वीया कॉन्फ्रेंसें, सरहद पार मुज़ाकरात, तजारती बातचीत। नंबर 14, mediation, where appropriate mediation offers the confidential and cost-effective methods of dispute resolution. Benefits include
reduced costs, faster outcomes, confidentiality, business relationship preservation, flexible solutions, voluntary participation, mediation। सालसी नंबर 14, सालसी एक रजा कराना खुफिया और कम खर्च तरीका है। इसके फवायद कम अखराजात, जल्द हल, राजदारी, कारोबारी ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़, लचकदार हल, बाहमी रजामंदी। पॉइंट 15, आर्बिट्रेशन if required by contract or mutual agreement, dispute may proceed through international arbitration. Arbitration generally includes appointment of arbitrators, procedural timetable, exchange of evidence, witness testimony, expert evidence, hearings, final award। आर्बिट्रेशन हकमियत नंबर 15, अगर मुआहदे या बाहमी रजामंदी के तहत सालसी लाजिम हो तो कार्रवाई में शामिल हो सकता है। सालसों की तकर्री कार्रवाई का शेड्यूल, शवाहिद का तबादला, गवाहों के बयानात, माहिरीन की राय, समातें, हतमी अवार्ड। Number 16, court proceedings. If settlement is not achieved, legal proceedings may be commenced before a set competent court. Court proceedings may involve filing the claim, service of legal documents, defense submissions, discovery process, interim applications, expert reports, hearings, ट्रायल, जजमेंट। अदालती कार्रवाई नंबर 16, अगर तस्वीर मुमकिन ना हो तो मुतल्लिका अदालत में मुकदमा दायर किया जा सकता है। अदालती कार्रवाई में शामिल हो सकता है दावा दायर करना, नोटिस की तामील, जवाब जमा करवाना, दस्तावेजात का तबादला, भूरी दरखास्तें, माहिरीन की रिपोर्ट्स, समाअत, मुकदमे का ट्रायल, अदालती फैसला। Number 17, cross-border enforcement. Obtaining a judgment is often only one part of the recovery process. Enforcement may involve recognition of foreign judgments, enforcement proceedings, tracking, asset tracing, freezing orders, garnishment, seizure of property, बैंक अकाउंट रिकवरी, इंटरनेशनल कॉपरेशन। सरहद पार फैसलों पर अमल दरामद नंबर 17, फैसला हासिल होने के बाद इस पर अमल दरामद के लिए दर्ज झैल इकदाम किए जा सकते हैं। गैर मुल्की फैसले की मंजूरी, नफाज की कार्रवाई, असासों की तलाश, असासन मुंजमद करवाना, बैंक अकाउंट्स की जब्ती, जायदाद की जब्ती, बैनुल अक़वामी ताउन। नंबर 18, एसेट रिकवरी, where assets are located internationally. Recovery strategies may include asset investigations, financial tracing, corporate ownership analysis, property searches, banking investigations, enforcement proceedings, international cooperation mechanisms। असासों की बाजियाबी नंबर 18, बैरून मुल्क मौजूद असासों की वसूली के लिए असासों की तहकीकात, मालियाती सुराग रसानी, कंपनियों की मालियत की जाँच, जायदाद की तलाश, बैंकारी मालूमात, नफाज की कार्रवाइयाँ, बैनुल अक़वामी कानूनी ताउन। Number 19, settlement agreements, where parties agree to resolve this dispute. Settlement agreements generally include payment obligations, release clauses, confidentiality provisions, future obligations, default provisions, governing law, dispute resolution clause। तस्फिया का मुआहदा नंबर 19, अगर फ्रीकैन बाहमी तस्फिया कर लें तो मुआहदे में शामिल हो सकता है अदायगी की शर्त, जिम्मेदारी से बरियत की शिकें, राजदारी की शराइत, आइंदा जिम्मेदारियाँ, खिलाफवर्जी की हकूक में खिलाफवर्जी की सूरत में कार्रवाई, काबिल इतलाक कानून, तनाज़े के हल की शिक। नंबर 20, damages assessment। Claims may include compensation for direct financial loss, full consequential loss, lost profits, contract damages, property damage, business interruption, legal costs, interest, currency losses। नुकसानात का तखमीना नंबर 20, दावे में दर्ज झैल नुकसानात शामिल किए जा सकते हैं। बराह रास्त माली नुकसान, बिलवास्ता नुकसान, नाफे का नुकसान, मुआहदाती नुकसान, जायदाद का नुकसान, कारोबारी तातुल, कानूनी अखराजात, सूद, करेंसी के उतार चढ़ाव से होने वाला नुकसान। Point 21, compliance requirements. International claims require compliance with local procedural rules, court regulations, arbitration rules, anti-money laundering regulations, sanction laws, data protection laws, tax reporting requirements, international compliance standards। कानूनी तकाज़ों की पाबंदी नंबर 21, बैन अवी दावे के दौरान दर्ज झैल कवानीन और ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी जरूरी है। मुकामी अदालती कवायद, अदालती तरीक़ेकार,
सालसी के कवायद, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कवानीन, बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, डेटा प्रोटेक्शन कवानीन, टैक्स रिपोर्टिंग, बैनुल अक़वामी कानूनी मेयारात। नंबर 22, कॉन्फिडेंशियलिटी, वी मेंटेन स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू आउट द claims processing by protecting client information, commercial data, financial records, trade secrets, intellectual property, settlement discussions, legal strategies, privileged communications। राजदारी नंबर 22, हम दर्ज झैल मालूमात की मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हैं। मुवक्किल की मालूमात, कारोबारी रिकॉर्ड, मालियाती मालूमात, तजारती राज, दानिशवराना इमलाक, तस्वीर मुज़ाकरात, कानूनी हिकमत अमली, वकील और मुवक्किल के दरमियान मरासलात। पॉइंट 23, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स, क्लाइंट्स रिसीव रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग क्लेम स्टेटस, filing progress, responses received, negotiation developments, court hearings, arbitration proceedings, settlement discussions, enforcement actions, recovery process, recovery progress। मुवक्किल से राब्ता नंबर 23, कार्रवाई के दौरान मुवक्किल को बाकायदगी से दर्ज झैल अमूर से आगाह रखा जाता है। दावे की पेशरफ्त, दायर करने की सूरत हाल, मसूल होने वाले जवाबात, मुज़ाकरात की पेशरफ्त, अदालती समातें, सालिसी की कार्रवाइयाँ, तस्लिया की पेशरफ्त, नफाज की कार्रवाइयाँ, वसूलियों की सूरत हाल। S24 estimated timeline, the duration of an international claim depends on complexity of the dispute, number of parties, jurisdiction involved, court workload, arbitration schedule, availability of evidence, settlement negotiations, enforcement requirements. Claims may range from several months to several years depending on the circumstances। तवक्का मुद्दत नंबर 24, बैनुल अक़वामी दावे की मुद्दत मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर हो सकती है, मसलन तनाज़े की पेचीदगी, फ़रीक़ैन की तादाद, मुतल्लका मुल्क, अदालत का निज़ाम, सालसी का शेड्यूल, शवाहिद की दस्तयाबी, मुज़ाकरात, फैसले पर अमल दरामद। बाज़ दावे चंद माह जबकि बाज़ कई साल तक जारी रह सकते हैं। 25, client responsibilities, clients are expected to provide complete information, submit accurate documentation, cooperate throughout the process, respond promptly to requests, maintain confidentiality, preserve evidence, comply with legal obligations, inform us of any material developments। मुवक्किल की जिम्मेदारियां नंबर 25, मुवक्किल की जिम्मेदारियों में शामिल है दुरुस्त मालूमात फराहम करना, मुकम्मल दस्तावेजात जमा करवाना, कानूनी टीम के साथ ताउन करना, बर वक्त जवाब देना, राजदारी बरकरार रखना, शवाहिद महफूज रखना, कानूनी तकाज़ों की पाबंदी करना, किसी भी अहम तब्दीली से फौरी आगाह करना। Number 26, our commitment. We are committed to providing professional, ethical, and effective international claims services by protecting our clients' legal interests, delivering strategic legal guidance, maintaining transparency, ensuring confidentiality, promoting efficient dispute resolution, pursuing fair compensation, comply with international legal standards, claim कीपिंग क्लाइंट्स इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। हमारा आज़म नंबर 26, हम अपने मौक्किलीन को दर्ज झैल असूलों के मुताबिक खिदमात फराहम करने के पाबंद हैं। कानूनी हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, पेशा वराना कानूनी रहनुमाई, शफ़ाफ़ तरीक़ेकार, मुकम्मल राजदारी, मौसर तनाज़े हल, मुनासिब मुआवजा हासिल करने की कोशिश, बैनुल अक़वामी कानूनी मेयारात की पाबंदी, हर मरहले पर मुवक्किल को बाखबर रखना। पॉइंट 27, कंक्लूजन। The international process of claim is a comprehensive legal framework designed to resolve cross-border disputes fairly, efficiently, and in accordance with applicable laws and international standards. By combining through preparation, strategic legal analysis, effective negotiation, and robust enforcement and mechanisms, international claims can protect legal rights, recover losses, and achieve equitable outcomes. Our experienced professionals are dedicated to guiding clients through every stage of the process with integrity, diligence, and a commitment to excellence। इख्तितामिया बैनुल अक़वामी दावे का अमल एक जामे कानूनी फ्रेमवर्क है जिसका मकसद सरहद पार तनाज़ात को कानून, इंसाफ और बैनुल अक़वामी मेयारात के मुताबिक मौसर अंदाज में हल करना है। मुनासिब सूबाबंदी, मजबूत कानूनी तजिया, मुकम्मल दस्तावेजात, मुयस्सर मुज़ाकरात, सालिसी अदालती कार्रवाई और फैसले पर अमल दरामद के जरिए अफराद और इदारे अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़
माली नुकसानात की वसूली और मुनसिफाना कानूनी नतायज हासिल कर सकती हैं। हमारा इदारा हर मसले पर पेशावराना महारत, दयानतदारी, शफाफियत और आला कानूनी मेयार के साथ अपने मौकिलीन की रहनुमाई और नुमाइंदगी के लिए पुरअज़म है।